Hello students, I am Dharmendra Sahu and today I am going to start my second lecture on labor cost of cost accounting. In last lecture we have discussed about the concepts of labor and labor cost. So the labor is the person who are engaged in the factory, for converting raw material into the finished product, and the amount or remuneration paid to them or any compensation paid to them is known as labor cost. Then we were discussing about the direct labor types of labor cost, that is direct labor and indirect labor. In direct labor, the person or the worker who are directly engaged in the factory for converting the raw material into the finished product is known as direct labor. Means the worker or the person who are directly engaged in the factory that's converting the raw material into the finished product, that is known as direct labor, and any remuneration provided to them is known as direct labor cost. Okay, and direct labor cost is the important elements of prime cost. Then we were discussing about the indirect labor cost, who are indirectly engaged in the factory, or indirectly help to the direct labor for converting the raw material into the finished product. They are sweeper, watchman, etc. And the wages which is paid to them is known as overhead. Then we are discussing about the idle time, that is the time on which the workers are paid, but no production is obtained. And in overtime, it is the work beyond the normal working period, or if the workers do the work beyond the normal working hour, then it is called as overtime. Okay, today we are going to discuss about the causes of idle time. So there are three causes of idle time. That one is productive causes. Second one is administrative causes, and third one is economic causes. So there are three causes of idle time. First of all, you have already know about what do you mean by idle time. So what we learn, that idle time is a time on which the workers are paid, but on that time no any production is obtained. So what are the reason that the workers
are not engaged in the production but employer bound to pay for that time. So there are three reasons or causes, that is productive causes, administrative causes and economic causes. Productive causes, administrative causes, economic causes. So productive causes incurred may be due to the idle time due to machine breakdown, जब मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाएगा तब प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, तभी वर्कर लोग कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो टाइम वो फैक्ट्री के लिए दिए हैं, ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन वो फैक्ट्री में एंगेज थे, इसलिए ओनर आर बाउंड टू पेड for this time. So this time is known as idle time. Okay, so productive causes क्या हो सकता है ना, मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकता है, तो जब मशीनरी ब्रेकडाउन होगा तब आइडल टाइम हो सकता है। ओके, पावर फेल्यूर, सपोज कोई फैक्ट्री या तो फिर जहाँ पे पावर का ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड रहता है, तो वहीं जब पावर कट हो जाता है तो प्रोडक्शन नहीं होता है, या तो फिर वर्कर लोग काम नहीं करते हैं, because that means production is depend upon the power. So due to failure of power, there is the absence of the production. Okay, so this time is also known as idle time. Okay, then workers waiting for raw materials and tools. Suppose फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है एंड 2-3 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, तो प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा है, तो वर्कर तो एंगेज होंगे फैक्ट्री में, लेकिन वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, तो किसको फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए उन लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन उन लोग को पेमेंट होगा, उन लोग को पेमेंट दिया जाएगा, तो ये इसको भी आइडल टाइम बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, वर्कर वेटिंग फॉर वर्क, जब कोई दूसरा मीन्स नेक्स्ट वार के लिए जब वेटिंग करते मीन्स 5 मिनट हो या फिर 10 मिनट हो या तो फिर आधा घंटा, जितना भी वेट करेंगे वो उसके लिए तो वो काउंट नहीं होगा कि हाँ ये 5 मिनट काम नहीं किया है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकेगा, तो वो जो 5 मिनट भी जो वेस्ट हुआ उसको आइडल टाइम बोलेंगे। क्लियर? देन workers waiting for instruction, सपोज ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोजेस भी ये कहलाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान एंड पॉलिसी बनाता है कि कैसा प्रोडक्शन को किया जाए, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, कौन सा टाइम में किया जाए, कितना घंटा वो प्रोडक्शन के लिए दिया जाए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है।
तो ये प्रोडक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको प्रोडक्शन कॉजेस में लिया गया है। ओके देन, तो इतना आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, power failure, workers waiting for raw materials, workers waiting for work and worker waiting for instruction, these are the productive causes। तो सेकेंड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। मैं अभी बताया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, मैं अभी बताया कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर जैसे कि बीडी, एमडी, जीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर, उन लोग कुछ प्लान एंड पॉलिसी हर वक्त मीन्स प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, उन लोग मेथड को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं ना, एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसी तरह टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रोडक्शन को या तो फिर प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट टेस्ट को चेंज करता है, तो इसलिए वो डिसीजन लेता है, प्लान एंड पॉलिसी बनाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के लिए वही प्लान एंड पॉलिसी बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है और उसके चलते वर्कर लोग डिले करते हैं प्रोडक्शन को। ओके, सो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस देयर मे बी ए राइज ऑफ आइडल टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लान एंड पॉलिसी बनाया है वो वर्कर को क्लियर अंडरस्टूड नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, लैक ऑफ कंफर्मेशन अबाउट द प्लान एंड policy, then change in the or time taken to change in the new plan and policy, time taken to change the old plan or policy to new plan and policy। okay, then workers waiting for instruction, worker waiting for instruction। okay, then economic causes, इकोनॉमिक कॉजेस क्या हो सकता है ना, सीजनल वेरिएशन जब होता है तब प्रोडक्शन भी वेरिएशन करना पड़ता है, प्रोडक्शन में भी वेरिएशन करना पड़ता है। सपोज ले लो आइसक्रीम समर सीजन में ज़्यादा सेल होता है, तो समर सीजन में आइसक्रीम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो तभी वर्कर लोग पूरा बिजी हो जाता है। लेकिन समर सीजन ख़त्म होते ही उन लोग को छुटकारा मिलता है, मीन्स थोड़ा टाइम मिलता है प्रोडक्शन में, तो वही टाइम को मीन्स सीजनल वेरिएशन को ही इकोनॉमिकल कॉजेस किया जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आइडल टाइम में arise due to severe competition
और सीजनल नेचर ऑफ वेरिएशन, सीजनल नेचर ऑफ वेरिएशन। क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि इन द केस ऑफ woolen goods, in the case of woolen goods, then ice cream industry production cannot be evenly distributed throughout the whole year। तो यहाँ पे तुम लोग का कन्फ्यूजन भी होगा सर, जब मीन्स जैसे कि आइसक्रीम प्रोडक्शन हो रहा है समर सीजन में, तो वर्कर लोग को समर सीजन में अपॉइंट किया जाए एंड देन विंटर एंड रेनी सीजन में उन लोगों को छुट्टी दे दिया जाए, लीव दे दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ 3 महीना 4 महीना काम करेगा देन जाके 1 साल बैठा रहेगा एंड देन 1 साल बैठ के वो कहाँ से पैसा लाएगा फिर? तो वर्कर या तो फिर एम्प्लॉयर लोग कहाँ पे वार करें? जहाँ पे उसको सालों साल वो काम कर सकेंगे, सालों साल वो पैसा कमा सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय ए number of worker in the busy season and to leave them during slack season, clear? Okay, so these are the different causes or reasons of idle time. Now I am going to discuss about the types of idle time. It is most important the examination point of view. Okay, so types of idle time. There are 2 types of idle time, that is normal idle time and abnormal idle time. Normal idle time and abnormal idle time and abnormal idle time। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या हो सकता है? तो देखो आगे समझा देते हैं। देखो नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जब हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कंपलसरी ये जाएगा ही जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ये है फैक्ट्री गेट। ये फैक्ट्री गेट, लेकिन फैक्ट्री कहाँ पे है? यहाँ पे।
यहाँ पे फैक्ट्री है। ओके, तो वर्कर जब एंटर करता है यहाँ पे टाइम रिकॉर्डिंग हो जाता है। देन यहाँ से चल के जाने मीन्स जाने तक मीन्स यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 10 मिनट्स टाइम ले जाता है। तो ये जो 10 मिनट जो टाइम लिया, ये तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एंड ये तो अवॉइड नहीं सकते। एंड सपोज वर्कर पिछला 4 घंटा या तो 5 घंटा से काम कर रहा है, जैसे कि 8 बजे आया, देन 12 बजे तक काम किया, देन 12 बजे से 1 बजे तक वो ब्रेक लिया, देन काम किया 5 बजे तक, 5 PM तक। तो ये ब्रेक लंच ब्रेक है, या तो फिर एनी कॉल ऑफ नेचर जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन है, पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मीन्स एस्टिमेटेड कर लेते हैं कि वो आइडियल मीन्स वो टाइम वर्कर रेस्ट के लिए या तो फिर कुछ मीन्स एनी पर्पज के लिए लेंगे, वो टाइम वेस्ट करेंगे और उसका वो टाइम का वेस्टेजेस को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम कहते हैं। ओके, सो नॉर्मल आइडियल टाइम क्या है? दिस इज द टाइम। यहाँ हम लोग सिर्फ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो दिस इज द टाइम, द वेस्टेज ऑफ विच cannot be avoided, and therefore the employer must bear the labor cost of this टाइम। तो आज एम्प्लॉयर कैन नॉट बी अवॉइडेड दिस टाइम, सो he has to bear this labor cost। तो पहले बोलो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले ओनर ये लेबर कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकता है, उसको पेमेंट देगा ही देगा। वो नहीं बोल सकता है कि तुम लंच ना करो, मीन्स कंटिन्यूस 8 घंटा काम करो, तुम मीन्स जैसे कि वर्कर लोगों को कॉल इन नेचर दिखा रहा है तो वो सबको छुटकारा ही नहीं देगा। तो ये नहीं, अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। इसलिए ये टाइम का कॉस्ट को कौन बियर करेगा? ना ओनर, एम्प्लॉयर बियर करेगा। क्लियर? एम्प्लॉयर बियर करेगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट जानने से पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ओके, तो नॉर्मल आइडियल टाइम का यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल आइडियल टाइम, एंड यहाँ पे अब नॉर्मल आइडियल टाइम, अब नॉर्मल आइडियल टाइम। तो नॉर्मल आइडियल टाइम क्या हो सकता है? टाइम टेकन फ्रॉम दी फैक्ट्री गेट
to the department where the worker is engaged and the reverse journey at the end of the डे। तो एट द एंड ऑफ द डे के लिए जैसे कि यहाँ पे बताएं कि जब वर्कर आएगा यहाँ फैक्ट्री गेट से यहाँ तक मीन डिपार्टमेंट को तक जाने के लिए उसको 10 मिनट लगता है, फिर डिपार्टमेंट से यहाँ तक आने के लिए उसको 10 मिनट लगता है, तो वो 20 मिनट बेकार ही चला जाएगा। ओके, सेकेंड, टाइम टेकन in machine maintenance। Then third, tea break or lunch break or personal problems like call in nature। Okay, so these are the examples of normal ideal time। Okay, तो ट्रीटमेंट पहले ही बता दिए कि आज इट इज एस्टिमेटेड which cannot be, the wastage of which cannot be avoided by the employer। So this the time or this cost is the part of production cost or total cost। so treatment क्या लिख सकते हैं? treatment आज it is cannot be avoided by proper action of the employer, so it will add it to the cost of production। okay, now abnormal ideal time। तो abnormal ideal time क्या हो सकता है? which cannot be estimated and the wastage of which can be avoided if the proper precautions are taken। तो क्या बोले which the time which cannot be estimated and wastage of which can be avoided by proper precautions are taken। तो जब प्रॉपर कंट्रोल या तो भी प्रॉपर मैनेजमेंट लेंगे तो ये टाइम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस टाइम इज अदरवाइज नोन एज abnormal ideal time। ओके, then this time generally arises
ड्यू टू inefficient मैनेजमेंट। ओके, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, सपोज मेजर ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। वो पहले भी चाहता तो मशीनरी को ठीक कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था, पूरा मेंटेनेंस अच्छा से कर सकता था। ओके, देन डिले इन मटेरियल सप्लाई, डिले इन मटेरियल सप्लाई, then major सपोज और क्या लिख सकते हैं? स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये एस्टिमेटेड नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा पहले देखो समझा देते हैं, सुनो। तो ओनर नॉर्मल आइडल टाइम को अवॉइड, जितना भी चाहे स्टेप ले ले, इसको अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन अब नॉर्मल आइडल टाइम को प्रॉपर मैनेजमेंट से, प्रॉपर प्रिपरेशन से, प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग से इसको कंट्रोल कर सकता है। तो जब इसका मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाएगा, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। देन इनकम टैक्स अथॉरिटी आगे बोलेगा कि नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट इतना नहीं है, ये टाइम तुम क्यों इतना स्पेंड करा रहा है, तुम उन लोग को तुम प्रॉपर अच्छा मीन्स गुड मीन्स एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्प्लॉय करो, देन अच्छा मशीनरी, गुड क्वालिटी मीन्स अच्छा क्वालिटी वाला मशीनरी यूज करो। तो ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन ही ये इसका कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही लिखो, दिस कॉस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ production. It is not a part of cost of production, and it is one type of loss which is written off from the costing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू कंट्रोल दिस टाइम, हाउ टू कंट्रोल द आइडल टाइम एंड ओवर टाइम का कुछ कॉजेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक